Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone, my dear students. On the last occasion, we was discussing about the cash control study. So we have discussed various distinctive features of cash control study, and then we left our topic on the steps of the cash control study. So the review of the last lecture that in observational study there is a descriptive study, cross-sectional study we have already discussed. The other is the analytical study. Analytical studies are the ecological study or correlation study, and then cross-sectional study, cash control study, and cohort study. These all are analytical studies. So cross-sectional study we have already discussed. Analytical study comprises of two distinct types of observational rational studies. One is a case control study, other is a cohort study. Means there are two distinct types of these studies, which are called as the observational analytical studies. One is the case control, means cases, and other is the control group comparison group. And other is a cohort study. Cohort means group of normal people, observation of disease. Now, from each of these studies design, one can determine whether or not statistical association. Calculation हम करेंगे कि statistical association exist करती है between the disease and suspected factors, means cause underlying. अगर if one exists तो उसकी strength of ताकत कितनी है association की. Basically in analytical observational study they depend on the calculation, statistical calculation, which shows some relationship or association with suspected factors. If there is an association, one exists, the strength of association उसकी ताकत कितनी है बेटा. This is the disease, this is the case control study design. Means this basically this is the study of the two population. One is the cases, means disease, other is the control. Both have exposures, both have exposures. These are the smokers, non-smokers, smokers, non-smokers, both have exposure, for example. So case control study, this is undertaken on individuals who have already contacted the disease. मीन्स हम डिजीज से स्टार्ट करते हैं. क्वाट स्टडी जो है हम डिजीज से नहीं स्टार्ट करें, हेल्दी पीपल से बेटा स्टार्ट करते हैं. केस कंट्रोल स्टडी दिस इज अंडरटेकन ऑन इंडिविजुअल्स हु हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज. इट प्रोसीड्स बैकवर्ड्स इफेक्ट टू कॉज. सिगरेट स्मोकिंग उसने क्या कॉज किया, इफेक्ट टू कॉज. That is exposed, so-called as a retrospective study, often called as a retrospective study, or a common first approach to test the causal hypothesis. कैंसर हो गई बेटा, लंग कैंसर, हम उसको टेस्ट करेंगे. Case control method has three distinct features. उसके तीन distinct features हैं केस कंट्रोल स्टडी के. पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो कौन से फीचर्स हैं, बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम डिजीज है ऑलरेडी अकर. हम स्टार्ट डिजीज से करेंगे, एक्सपोजर भी उसको हो गया, डिजीज हो गया. द स्टडी प्रोसीड्स फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज. भाई से पूछेंगे सिगरेट स्मोकर था, नहीं था, इफेक्ट टू कॉज, फिर उसको क्या कंडीशन हो गई, कॉज क्या हुआ, लंग कैंसर. इट इज यूजेस कंट्रोल ऑफ द कंपेरिजन ग्रुप. एक हम नॉर्मल बंदों का कंट्रोल ग्रुप लेते हैं जिससे हम कंपेरिजन करते हैं कि भाई इसको कैंसर क्यों हुई और इसको कैंसर क्यों नहीं हुआ, सेम मैचिंग करेंगे. दिस इज द एसेंस ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी. यूजेस द कंट्रोल और कंपेरिजन ग्रुप टू सपोर्ट और रिफ्यूट इन्फ्लुएंसेस. उसके रिजल्ट को सपोर्ट करते हैं या उसको रिजल्ट को सपोर्ट नहीं करता है. मीन्स द थ्री डिस्टिंक्ट फीचर्स. Exposure, outcome, disease have already occurred. Studies start backward from effect to cause, and there is the uses of the comparison group or matching. Have you got my point, my sons and daughter? Have you got my point? Hello? Yes, sir. Yes, sir, we got you. We got. Thank you. By definition,
My dear students, by definition, a case control study involves two populations. One is the cases, other is the control. The unit is individual rather than groups. Individual. The focus on the disease. किस पर? Focus on the disease पर होगा. Focus on the disease or some other health problems that are already developed. Case control studies are basically comparison study. जैसे already cases and control must be comparable. में cases और control comparable करेंगे respected known and confounding factors such as age, sex, occupations. Means ये variable हैं. Distorting variables means उसके बाद हम discuss करते हैं age, sex, occupation, social status सेम ही होगा. cases का भी और control का भी उससे हम मैचिंग करेंगे. ठीक है बेटा. The question asked उससे पूछा जाएगा related personal characteristics and antecedent exposure. जो उसको exposure था, स्मोकर था, नॉन स्मोकर था, whatever जो भी, which may be responsible for the condition studies. ये condition जो हम study करते हैं वो कैसे हुई उसका हम पिछले का मतलब exposure लेंगे, antecedent exposure लेंगे. ठीक है. इसकी बेसिक डिजाइन है कैलकुलेशन करने के लिए 2x2 टेबल पर हम कैलकुलेट करते हैं. ये है 2x2 टेबल मैं बना के आया हूँ. ये 2x2 टेबल. इज इट विजिबल? दिस इज द 2x2 टेबल. दिस इज द 2x टेबल जो बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है. बेसिक स्टेप्स अभी तरीके का उसके क्या हैं बेटा? बेसिक स्टेप्स केस कंट्रोल स्टडी के मेरा बच्चे बेसिक स्टेप्स हैं. सिलेक्शन ऑफ द केसेस एंड कंट्रोल ग्रुप. पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे केसेस, उसकी क्राइटेरिया होगी. अदर इज द कंट्रोल ग्रुप, उसकी सिलेक्शन होगी. बेसिक स्टेप्स केस कंट्रोल स्टडी, केसेस एंड कंट्रोल. उसके बाद हम मैचिंग करेंगे, मैच करेंगे. देन मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर. मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे किसकी? एक्सपोजर की. सिगरेट स्मोकिंग जैसे क्वेश्चनर से करेंगे या मतलब कैसे भी. उसके बाद उसका तजिया करेंगे, एनालिसिस या उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे उसके. सो बेसिक स्टेप्स 4 स्टेप्स. सिलेक्शन ऑफ द केसेस एंड कंट्रोल, मैचिंग, measurement of exposure, analysis and interpretation. Now we are discussing about the selection of cases and control. The selection of cases and the control, the first steps to identify the suitable group of the cases and group of the control. The selection of cases के लिए एक डेफिनेशन होती है, एक उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होती है. ब्रेस्ट कैंसर तो फर्स्ट स्टेज का, एडवांस स्टेज नहीं लेंगे. एलिजिबिलिटी वो ही होगी. दिस इज कॉल्ड द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और स्टेज क्राइटेरिया होगी. फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर लेंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है. एडवांस केस नहीं लेंगे, सिर्फ न्यू केस लेंगे. या तो सिर्फ पुराने केसेस लेंगे या फिर न्यू केसेस मतलब लेंगे. ऐसे ही है. इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है सिलेक्शन ऑफ केसेस में. ठीक है. उसके बाद सोर्स ऑफ केसेस हॉस्पिटल से लेते हैं या जनरल पॉपुलेशन से हम लेते हैं. वो सोर्स ऑफ केसेस मतलब मिल जाते हैं. स्टडी करनी है, किसी को रिसर्च करनी है तो सोर्स भी पहचान लेगा. ठीक है ना. तो इसमें क्या है बेटा? सिलेक्शन ऑफ केसेस, उसकी एक डेफिनेशन बनानी है, उसकी डायग्नोस्टिक प्रॉपर क्राइटेरिया होनी चाहिए. जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर की आप स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेज की उसकी स्टडी करेंगे, उसको फर्स्ट स्टेज में ही देखेंगे. उसकी एलिजिबिलिटी भी यही है. नहीं ऐसे नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर के सब आप मरीज रखेंगे, नहीं. एडवांस केस नहीं रखेंगे, उसके जो फर्स्ट स्टेज वाले केसेस है वो रखेंगे. सोर्सेस हॉस्पिटल, जनरल पॉपुलेशन. उसके बाद मीन्स केसेस की क्या होगी? क्राइटेरिया और डेफिनेशन होनी चाहिए, व्हाट एवर है. उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल, वही हम कंट्रोल ग्रुप लेंगे. वही मैचिंग के लिए हॉस्पिटल से लेंगे, रिलेटिव रिश्तेदार से लेंगे, नेबरहुड से लेंगे, जनरल पॉपुलेशन से हम लेंगे इसको कंट्रोल ग्रुप को. ठीक है ना. विदाउट डिजीज ग्रुप को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा. Yes, sir. We are getting. ऑफ द कंट्रोल्स. ठीक है. सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल हमने लिया. उसके बाद है मैचिंग बेटा. मैचिंग
The process of selecting the control so that they are similar to the cases. जो डिजीज है, डिजीज वाले बंदे से उनकी मतलब मैच होना चाहिए करे, सच एज एज, रेस, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, ऑक्यूपेशन। इटालॉजी ऑफ द केसेस जो है बेटा, इटालॉजी ऑफ द केसेस के हवाले से जो एज है वो इन्फ्लुएंसिंग करती है आउटकम ऑफ द डिजीज को। एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत सारी जो है, मतलब जैसे ब्लड प्रेशर है आफ्टर 40 है, शुगर आफ्टर 40 है, ऐसे ही मतलब एज का बड़ी इंपॉर्टेंस है इटालॉजी ऑफ द केसेस के हवाले से। उसके बाद हम करेंगे मैचिंग इन ग्रुप भी कर सकते हैं, मैचिंग इन पेयर्स भी कर सकते हैं। हमने एक लंग कैंसर का केस लिया, उसका हम दूसरा बंदा एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन सेम हमने लिया, उसकी मैचिंग इन पेयर्स में करेंगे या ग्रुप्स में मैचिंग करेंगे, ऐसे ही मैचिंग इन। तो मतलब उसको रिलेशन देखेंगे, उसको डिजीज क्यों नहीं हुई, इसको डिजीज क्यों नहीं हुई, इसका एक्सपोजर कैसे था, स्मोकर था, नॉन स्मोकर था, ऐसे ही। और उसके बाद मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, भाई एक्सपोजर क्या है? फॉर एग्जांपल एक्सपोजर क्या है? वन इज अ स्मोकर, दिस इज द एक्सपोजर, this is the smoker, this is a non-smoker. So smoker and non-smoker, this is called as a exposure. ठीक है, exposure. The definition and criteria of the exposure are the variables means piece of information on which the observation is to be made, which is likely to be changed. The definition and criteria about the exposure are the variables which may be of the etiological importance or just the means definition and criteria about the exposure are just as important as those सारी important से cases के लिए भी control. This may be obtained. Measurement हम कैसे करते हैं? Measurement data कैसे लेंगे? This is by interview. This is by questionnaire. स्टडी ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड को हॉस्पिटल में होगा, कैंसर कितने केस हुई वो हिस्ट्री देगा, भाई मैं 40 सिगरेट पीता था, 30 सिगरेट पीता था, या ऐसे मतलब। ठीक है, कैसे मेजरमेंट हम लेंगे एक्सपोजर की? इंटरव्यू दे सकते हैं, डॉक्टर या क्वेश्चनर सर्वे होती है, या पास्ट रिकॉर्ड हॉस्पिटल से होती है। दिस इज वेरी इजी, दीज आर द 3 वर्ड्स फॉर एनीथिंग द मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर। वेरिएबल का मतलब ये जो आप क्वेश्चनर बनाएंगे उसमें ये स्मोकर था नहीं था, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन व्हिच ऑब्जर्वेशन इज टू बी मेड। भाई ठीक, हाँ स्मोकर, यस वेरिएबल। भाई कितने पीता था? मोर देन 20 सिगरेट्स पर डे, दिस इज आल्सो वेरिएबल, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेरिएबल ये है जो इसको कहते हैं। It is important to recognize that when case control study are being used to test association, the most important factor to be considered, even more important than the p-values, the obtained is the question of the bias or systemic error which must be ruled out. इस स्लाइड का बेटा मतलब ये है कि ये हमें एक बात प्रोबेबिलिटी है, हम थ्रो करते हैं, मतलब कोई कॉइन है आसमान में, हम जो है ना उसको ऊपर लगाते हैं तो नीचे एक टॉस होती है, तो हमें पता नहीं है ना हेड और टेल है, क्योंकि ये स्टडी है बेटा। इसमें हम कितने कॉन्फिडेंट हैं? 95% हम कॉन्फिडेंट है, 5% की प्रोबेबिलिटी है। तो 5% हो सकते हैं कैंसर के केसेस, 5% नहीं हो सकते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी की माना ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंट है इस स्टडी में, और 5% में हम प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम पहले ही सेट रखते हैं कि हम इस स्टडी में 95% कामयाब रहेंगे, मतलब जो 5% हम प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, ये वेरी इजी है आपको समझने के लिए। प्रोबेबिलिटी मीन्स उसको आप मतलब 5% प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हैपन हो सकता है, हैपनिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस स्टूडेंट प्लीज, आर यू लिसनिंग माय वॉइस रिगार्डिंग द प्रोबेबिलिटी बेटा? हाँ,
प्रोबेबिलिटी अब बेटा Yes, ऐसे sir. है, प्रोबेबिलिटी ऐसे है माय सन्स एंड डॉटर, क्या है कि कॉइन आप देखते हैं आसमान में, हेड एंड टेल है, ठीक है। ऐसे ही स्टडी में हम कॉन्फिडेंट कितने हैं इसी हवाले से, हम अगर 95% कॉन्फिडेंट हैं तो 5% जो है ना, हम 5% जो है ना हम प्रोबेबिलिटी को छोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नो this is cases, this is the control, risk factor present, risk factor absent, स्मोकर नॉन स्मोकर, कंट्रोल में भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर एब्सेंट, इसको हम कंपैरिजन करेंगे। रिस्क फैक्टर एब्सेंट को, रिस्क फैक्टर एब्सेंट को हम कंपैरिजन करेंगे केसेस के हवाले से। रिस्क फैक्टर प्रेजेंट, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट को हम कंपैरिजन करेंगे केसेस को और कंट्रोल को। ये पॉपुलेशन है, ये डिजीज होगा, ये ऑलरेडी द फ्रेमवर्क ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी। This is a case control study. Factors present are absent. Individual for the particular disease means individual जो बंदे particular disease हो उसको हम cases कहते हैं। Individual without particular disease बेटा हम उसको control कहते हैं। ये framework है। क्लियर आवाज अच्छे से? हाँ शफी साहब क्लियर पहुंचे आवाज? सब अलग बैठा है स्टूडेंट भी? है ना? फ्रेमवर्क ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी, रिस्क फैक्टर, दिस इज 2x2 टेबल, जहाँ से इंसिडेंट मतलब हम रिस्क रेशो निकालते हैं और हार्ट रेशो निकालते हैं। ये डिजीज प्रेजेंट, ये जो है कॉलम है, ये रो है बेटा टेबल का, ये रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये वाले कॉलम है और ये वाले रो है, ठीक है। 2x2 टेबल के क्या है बेटा, ये कॉलम है, ये रो है। ये मतलब एक कॉलम का टोटल होता है, एक ये बेटा रो का टोटल होता है, रो का टोटल होता है। दिस इज 2x2 टेबल हम बनाते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज a 2x2 टेबल। स्मोकर लेस देन 5 सिगरेट्स पर डे 33 केसेस में, कंट्रोल में 55, नॉन स्मोकर्स 2 केसेस हो गए, ठीक है। नॉन स्मोकर 27 है, ठीक है। टोटल ये जो है इसका कॉलम रो है A + C 33 + 2 35, ये 82 to 27 and 55 this is the diagram of the case control study। केस कंट्रोल स्टडी का हम डायग्राम बनाते हैं बेटा के 2x2 टेबल के ऊपर। 2x2 टेबल के ऊपर हम केस कंट्रोल स्टडी का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर के केसेस हो गए बेटा, लंग कैंसर के केसेस हो गए कितने, 33, ठीक है। 33 केसेस लंग कैंसर, ठीक है। और कंट्रोल विदाउट डिजीज 55 है, मैच करेंगे, ठीक है। नॉन स्मोकर जो है उसको भी 2 बंदों को कैंसर हो गए, लंग कैंसर हो गया। जो नॉन स्मोकर कंट्रोल है वो 27 है, इसको हम देखेंगे, इसको मैच करके देखेंगे कि इनको क्यों हुई या ऐसे क्यों हुई। मतलब तो मतलब जो स्मोकर्स ने देखा गया कि स्मोकर में बहुत ज़्यादा है। सो एक्सपोजर रेट हम इसको करके, इंसिडेंस रेट अमंग स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, तो ये हमने केसेस किए, ठीक है। 94.2%, ये कंट्रोल में 67.0%। दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। नाउ एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब ये है कि बेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, हमने टेबल बनाई, उससे हम फिर एनालिसिस करेंगे जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन की है। राइट among cases and control to suspected factors। एक्सपोजर रेट हम देखेंगे किसमें, केसेस और कंट्रोल में। एक्सपोजर रेट, a case control study provides a direct estimation of the exposure rates, means frequency of the exposure, जिसको हम कहते हैं this is same frequency of the exposure। तो इसमें हम बेटा क्या करते हैं, इसमें
हम क्या कहते हैं एनालिसिस में हम क्या करते हैं बेटा, मेजरमेंट करते हैं, किसकी एस्टिमेशन करते हैं, किसकी एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर। मींस पहले हम रिलेटिव रिस्क, उसके बाद हम ऑड रेशो निकालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं बेटा, इंसिडेंस अमंग द exposed group, incidence among the non-exposed group. This is called as a relative risk. तो इंसिडेंस अमंग एक्सपोज ग्रुप जो क्या है, कितना है, 94.2%, एंड इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज जो 67। ठीक है, तो नॉन एक्सपोज डिवाइडेड बाय द नॉन, दिस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन ऑफ द रिस्क एसोसिएशन। उसके बाद हम रिस्क रेशियो निकालते हैं, जिसको रिस्क रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशियो इसको कहते हैं। तो इन स्मोकर को कितना मतलब एक मतलब रिस्क है लंग कैंसर की, और नॉन स्मोकर को कितनी है, रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशियो इसको कहते हैं। इंसिडेंस रेट हम निकालेंगे, जो एक्सपोज पर्सन जो स्मोकर में वो कैंसर में कितने गए हैं, डिवाइडेड बाय इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, जो बंदे सिगरेट नहीं पीते हैं उसमें कितना मतलब है। ठीक है, ये क्या है, एस्टिमेशन ऑफ द डिजीज रिस्क। दिस इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसको रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशियो कहते हैं। रेशियो मींस रिलेशन, मींस टू रैंडम क्वांटिटीज, स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर में एक हम रिलेशन आपको बताते हैं, भाई ये स्मोकर में इतना परसेंट डिजीज हो सकती है, नॉन स्मोकर में इतना परसेंट कम हो। तो एक माय डियर स्टूडेंट्स, एक ये कैलकुलेशन, उसको हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी में ऑड रेशियो। और from a case control study we can derive a odd ratio, which is a measure of the strength of the association, ताकत कितनी है association between the factors and outcomes. Odd ratio is closely related to the relative risk. Later on, this is the exposed cross product ratio. My dear students, this is the exposed group, this is the non-exposed group. क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। तो इसमें क्या होता है, ये देखें बेटा, ये मैंने इधर चलिए डायग्राम बनाइए। ए स्मोकर है मेरा बेटा, ए स्मोकर है, डी नॉन स्मोकर है। ठीक है, ए और डी बन गई, ठीक है, और नॉन स्मोकर सी और बी है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो कहते हैं कि मतलब इंसिडेंस मतलब डायरेक्ट स्ट्रेंथ कितनी है स्मोकर में, कितनी मतलब परसेंटेज डिजीज दे सकता है, और नॉन स्मोकर कितनी डिजीज परसेंटेज ले सकता है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। तो आर रेशियो क्या है बेटा, डायरेक्ट ए डी अब्लिक बी सी, ए डी डिवाइडेड अब्लिक बी सी, ए डी डिवाइडेड बाय बी सी 8.1। देखें 8% ज्यादा है स्मोकर में, और 8.1% ज्यादा है किसमें, स्मोकर में और नॉन स्मोकर के हवाले से। हम क्या करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन देखते हैं, कितनी है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, कितनी ताकत है, कितनी मजबूती है। एक तो रिलेशन निकालते हैं पहले, भाई सिगरेट स्मोकिंग का लंग कैंसर के हवाले से रिलेशन निकालते हैं। अगर रिलेशन हमने निकाल दिया, उसके बाद उसकी ताकत की कितनी है, उसको स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन हम कहते हैं। जो केस कंट्रोल में हम ऑड रेशियो निकालते हैं। उसके बाद है बेटा बायस्ड इन केस कंट्रोल स्टडी। Bias in case control study, by the bias means any deviation from the rules. Deviation from the rules. जो हमसे गलती हो सकती है, this is called a bias. Bias due to confounding factors. बेटा confounding factor ये है कि एक बंदा सिगरेट स्मोकर भी है, वो ड्रिंक भी करता है। जब वो ड्रिंक करता है तो उसकी मतलब सिगरेट स्मोकिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब पहले वो सारे दिन में 10 पीता है, जब वो ड्रिंक करता है तो उस हवाले से वो 20 पी लेता है। ठीक है, तो इसकी ड्रिंक की उसका मतलब ड्रिंक के हवाले से वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है। तो ये कंपाउंडिंग है, डिस्टॉर्टिंग वेरिएबल है, हमें डिस्टर्ब करता है। तो इसको कैसे हम सेपरेट करके कैसे कैलकुलेट करें, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग वेरिएबल के
जब मतलब एक एग्रीवेटिंग फैक्टर बन गया ना बेटा, अभी जो मतलब ये जो कैंसर हो गई इसोफेगस की, आया ये इसोफेगस कैंसर जो हो गई, आया ड्रिंक से हो गई या सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से हो गई, ठीक है ना। तो हम इसको ये कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं, डिस्टर्बिंग फैक्टर जो हम कहते हैं कि one can identify that how this disease is created, either this is by alcohol or this is by cigarette smoking. They both are the aggravating factors. जब वो ड्रंक करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसकी स्मोकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। दिस इज ये बायस एनी डेविएशन रूल्स से हम हट जाते हैं। इससे भी मेमोरी या अधिकार बायस हम याद नहीं कर सकते हैं बंदे के लिए 10 सेकेंड कैसे में इसको निकाल सिलेक्शन ऑफ बायस, प्रॉपर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं लेते हैं, प्रॉपर केसेस नहीं लेते हैं, प्रॉपर कंट्रोल ग्रुप नहीं लेते हैं, या इंटरव्यू बायस, वो कहता है इंटरव्यू में एज 25 साल है, हम उसको 55 लिखते हैं, ऐसे ही गलती हो सकती है। दिस इज कॉल्ड बायस इन केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी का बायस है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली बेटा। क्या है केस कंट्रोल स्टडी? क्या है बेटा केस कंट्रोल स्टडी? बेटा क्या है? दिस इज द फ्रेमवर्क का केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी, दिस इज स्टडी अंडरटेकन इंडिविजुअल्स। क्या है बेटा? ये स्टडी है जो हम इंडिविजुअल्स के ऊपर करते हैं, ये स्टडी है जो हम इंडिविजुअल्स के ऊपर करते हैं, जो कॉन्टेक्ट करते हैं डिजीज के, जो कॉन्टेक्ट करते हैं डिजीज के, और एक प्रोड्यूस इफेक्ट कास्ट, एक बंदा स्मोक करता, उसका कास्ट क्या हुआ, उसका इफेक्ट क्या हुआ, कैंसर हो गई। सो रेट्रोस्पेक्टिव इसको हम स्टडी कहते हैं। पीछे से हम मतलब हिस्ट्री में जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज कहते हैं। कॉमन फर्स्ट अप्रोच का लेंगे जो कैजुअल हाइपोथेसिस। कैजुअल हाइपोथेसिस भाई क्या हो गई, कैंसर हो गई, तो उसका हम देखेंगे इफेक्ट कैसे कैंसर का मतलब हुआ, कैसे कैंसर। दिस इज कॉल्ड केस कंट्रोल मेथड। इसके 3 बेटा डिस्टिंग फीचर हैं। जब स्टडी आप स्टार्ट करेंगे, एक्सपोजर एंड डिजीज लेवल एरिया कर बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी। व्हाट स्टडी में हम नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, नॉर्मल बंदे लेंगे, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी में हम कैसे लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा द स्टडी प्रोसीड्स backward from effect to cause. Effect काज का कैंसर, और इसमें हम स्टडी में एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं। यहाँ से हम जो है ना कंपैरिजन करते हैं, जिससे कंपैरिजन करके हम इंसिडेंस लेंगे, रिजल्ट्स लेंगे। दिस इज कॉल्ड by definition a case control study involves two populations. One is the cases, other is the control. The unit is individual rather than group. The focus in case control studies are basically reason studies. One is the cases, other is the control. Must be comparable with respect to known confounding factors, age, sex, occupation, social status, etc., etc. The question asks, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टडी में किससे रिलेटेड, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के आप स्मोक करते, एक्सपोजर क्या था, उसके बाद 2x2 की टेबल बनाते हैं, यहाँ से हम डिजाइन करते हैं, यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक स्टेप इसमें 4 हैं। सिलेक्शन करनी है केसेस की और कंट्रोल की, मैचिंग करनी है, उसको मैच करते हैं, फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे। भाई सिलेक्शन ऑफ केसेस में प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होनी चाहिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एक ही होनी चाहिए जो स्टडी में आप एलिजिबिलिटी होगी। जैसे आपकी एलिजिबिलिटी इंटर में है, ठीक है, एंट्री टेस्ट के हवाले से फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आते हैं, ऐसे ही उस हवाले से सिलेक्शन इस लेवल पर करेंगे। और उसके बाद सोर्स कहाँ से, हॉस्पिटल से, जनरल पॉपुलेशन। उसके बाद सिलेक्शन आप कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कहाँ से लेंगे, हॉस्पिटल कंट्रोल है, रिलेटिव्स है, नेबरहुड है, जनरल पॉपुलेशन है, ठीक है।
उसके बाद इटालॉजी ऑफ द केसेस में एज का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैचिंग करते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सेलेक्टिंग द कंट्रोल सो दैट दे आर सिमिलर। माना मैचिंग में क्या, जो हम कंट्रोल ग्रुप लेंगे, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, सब मतलब स्टेटस के हवाले से एक ही होनी चाहिए। अगर उसका स्टेटस कोई दूसरा होगा, बड़ा आदमी होगा, तो उसका मतलब थोड़ा हो जाएगा। मैचिंग एंड ग्रुप कर सकते हैं, मैचिंग एंड पेयर्स कर सकते हैं। भाई ये बंदा था फला फैक्ट्री में काम करता था, टायर फैक्ट्री में, ये बंदा जो कंट्रोल हम लिया है वो एज के हवाले से वही वो टायर फैक्ट्री में वो भी काम करता है, इसकी हम कंट्रोल मतलब मैचिंग करेंगे। वाई ही दैट पर्सन इज नॉट कॉन्टेक्टेड डिजीज, वाई दैट पर्सन इज कॉन्टेक्टेड डिजीज, this is called as the matching. Are you getting my point, my sons and daughter? Are you getting my point? Hello? Are you getting my point? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, We are thank you. getting. मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर बेटा कैसे लेते हैं, इंटरव्यू से लेते हैं एक्सपोजर। कैसे आपको पता, क्वेश्चनर से लेके स्टडी ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड से, हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज करेंगे एसोसिएशन उसकी, तो टेस्ट करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट व्हेन द केस कंट्रोल स्टडीज आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द एसोसिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी पी वैल्यू निकालेंगे कि 95% हम कामयाब है, 5% हमें प्रोबेबिलिटी में। फिर बायास को भी रूल आउट करेंगे, ठीक है। ये है 2x2 टेबल, 2x2 टेबल है। 2x2 टेबल से हम एक्सपोजर रेट देखेंगे। एक्सपोजर रेट में हम पहले देखें, एस्टिमेशन करते हैं रिस्क एसोसिएशन कितनी है, रिलेटिव रिस्क इंसिडेंस कितना होता है एक्सपोज पर्सन में डिजीज का, और नॉन एक्सपोज पर्सन में इंसिडेंस कितना होता है। उसके बाद हम और रेशो निकालेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट रेशो निकालेंगे कि इंसिडेंस रेट एक्सपोजर में कितना होगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट रेशो नॉन जैसे ए सी मतलब ये और रेशो है निकालेंगे, ठीक है। दिस इज क्रॉस। उसके बाद बायास है, बायास ड्यू टू द कंट्रोलिंग फैक्टर मैंने बताया था स्टार्टिंग है। मेमोरी आपकी मतलब मेमोरी के हवाले से कोई गलती हो सकती है, रूल से हम डिलीट हो सकते हैं, सिलेक्शन के प्रॉपर नहीं कर सकते हैं कंट्रोल की या मतलब केसेस की। इंटरव्यू बायास में हम प्रॉपर इंटरव्यू मतलब नहीं ले सकते हैं क्वेश्चनर के हवाले से। जी अगर मां लेक्चर तो तव्हां ॿुधायांव थो साईं, हिकु मिंट। हाँ बिल्कुलु लिख दो, ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ओके ठीकु आहे, मां लेक्चर थो वठां, ठीकु आहे ठीकु आहे भाई। सिलेक्शन दिस इज केस कंट्रोल स्टडी। बेटा अभी एक बात जो कहने की मेरा बच्चा कि आप केस कंट्रोल स्टडी हो गई, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी बेस्ड ऑन सिंपल एग्जामिनेशन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वन इन टाइम बंदा जाएगा, क्वेश्चन लेगा, क्वेश्चन द रिजल्ट व्हिच कैन बी प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन, प्रोवाइड ए सैंपल एंगेजमेंट करेक्टली। क्रॉस सेक्शनल स्टडी आल्सो नोन एज द प्रिवेलेंस स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी फॉर शॉर्ट लेब होती है, हाइपरटेंशन के लिए लेंगे, कोई क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए अभी इसमें फर्क क्रॉस सेक्शनल स्टडी में और केस कंट्रोल स्टडी में कितना फर्क है कि वो वन पॉइंट इन टाइम हम जाते हैं और ये खाते हैं। क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजीज प्रेवलेंस, बर्डन कितनी है। फिर ये जो है केस कंट्रोल, मेरे ख्याल में मैंने बच्चा कोशिश तो बहुत की है कि नॉलेज आपको इम्पार्ट करूँ जितना मेरे पास है। ये रिसर्च का मैटर है सारा, जितनी मुझे नॉलेज है मैंने आपको रिपोर्ट की जितना मुझे आता था। एनी क्वेश्चन, उम्मीद है आपने कुछ समझा होगा, इससे थोड़ा इंटरेक्शन करें तो बेहतर होगा और जाके आप थोड़ी पढ़ाई भी करें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह जी बेटा ॻाल्हायो साईं ये जी साईं। कोशिश कयूं था साईं, कोशिश कयूं था रिपीट करण वो काथे आहे पिक्चर। हाँ इल्ताफ़ साहब, इल्ताफ़ साहब ॾिसो हाणे हिते इंटरेक्शन क्वेश्चननि खे वठूं, ॾिसो पिक्चर अचे, मुंहिंजी पिक्चर अचे। हाँ हाँ
It's a number and Gana and Bisonto 86. Baba वो बताऊं डाटे ना तो जी बेटा कोई क्वेश्चन वगैरह तो क्वेश्चन वगैरह जी बेटा हेलो हेलो Sir, how do we prevent the bias in the exposure and outcome in case control study? हाँ वेरी गुड माय सन वेरी गुड हाउ वी कैन प्रिवेंट ना कि ये जो How we can bias होता prevent है the ना bias? बाय रिपीटेशन एक तो रिपीटेशन के हवाले से हम बायस प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक है रिपीटेशन के हवाले से हम बायस प्रिवेंट कर सकते हैं दूसरा ये है कि बायस जो है ना एक नेचुरली हो जाता है बेटा नेचुरल मीन्स रूल से हम हट जाते हैं एरर है बायस जो है Personal bias उसका भी होते दूसरा हैं। नाम एरर है जी बेटा Sir, personal बायस bias मीन्स भी होते आप हैं। उसको एरर हाँ जी क्या क्या मैं समझ नहीं क्या Sir, personal bias भी होते हैं। Personal bias. पर्सनल Yes, sir. Personal bias can also affect on the exposure in the case control study. एक्सपोजर बेटा ऐसे ही एक्सपोजर अगर वो 25 सिगरेट्स पर डे पीता है और आप उसका मतलब 15 लिख के दें ठीक है या 15 क्वेश्चन ये एक बायस हो गया ठीक है ये हो और पर्सनल बायस प्रॉपर हम मैचिंग नहीं कर सकते हैं जैसे केसेस के हवाले से ये पर्सनल बायस हो सकते हैं केस केस जो लिया है हमने उससे हम प्रॉपर मैचिंग नहीं करते हैं कंट्रोल ग्रुप का तो ये बायस है बायस मीन्स एनी डेविएशन फ्रॉम द रूल्स एरर हम कोई रिएजेंट यूज करते हैं वो फॉल्टी आ जाता है रिएजेंट प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता है हमारा ब्लड प्रेशर सही काम नहीं करता है दिस इज कॉल्ड ए बायस ठीक है ना बेटा वेरी गुड और जी सर और केस कंट्रोल स्टडी और दी कोल्ड स्टडी के लिए हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से डिजीज के लिए हम केस कंट्रोल स्टडी यूज करें और कौन से डिजीज के लिए हम कोल्ड स्टडी यूज करें भाई ये रेयर डिजीज के लिए भी हम केस कंट्रोल स्टडी कर सकते हैं ठीक है ना रेयर डिजीज सबकी हम कर इसमें हम देखते हैं बेटा एसोसिएशन एसोसिएशन देखते हैं कि कैंसर का कितना एसोसिएशन है सिगरेट स्मोकिंग से अगर पहले तो हम इंसिडेंस रेट अमंग स्मोकर्स इंसिडेंट रेट अमंग नॉन स्मोकर्स ये रिस्क रिलेटिव रिस्क है या रिस्क रेशो है हम एक इसकी मतलब रिलेटिव रिस्क है दूसरा है एक रिस्क है रिलेशन है तो उसका फिर आर रेशो निकालेंगे कि इसमें स्ट्रेंथ ताकत कितनी है एसोसिएशन का पावर कितना है 2/2 टेबल पर हम जो है ना ये 2/2 टेबल पर तो रो टोटल एंड कॉलम टोटल करके हम उसको सेट कर मतलब कैलकुलेशन करते हैं जैसे ये है बेटा ये है बेटा ये रो टोटल ये कॉलम टोटल 2/2 ये हमने नॉन स्मोकर को देखा नॉन स्मोकर ये कंट्रोल ठीक है ना हम देखेंगे इस स्ट्रेंथ के हवाले से दिस इज कॉल्ड एज ऑड रेशियो ए प्लस डी स्मोकर ए है इसमें इंसिडेंस ज़्यादा है कैंसर का तो इसमें एक दो पॉपुलेशन लेते हैं एक केसेस की एक कंट्रोल की कंट्रोल मीन्स हम मैचिंग करते हैं उससे केसेस तो हो गया और बाद में हम इसका जो मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट की माना ये है कि हम उसका एक्सपोजर देखते हैं उसको मेजर करते हैं भाई एक्सपोजर इंटरव्यू से ले सकते हैं पोस्ट रिकॉर्ड से ले सकते हैं एक्सपोजर को हम देखते हैं ठीक है ना सारे कुछ इसके स्टेप्स हैं और इसके एक की पॉइंट्स है कि आउटकम डिजीज का हुआ हो उसमें हम कंट्रोल ग्रुप लेते हैं ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है इफेक्ट काज है जो काज मतलब कैजुअल हाइपोथेसिस उसको हम स्टडी करते हैं कि इसको कैंसर क्यों हुई लंग कैंसर क्यों हुई इसका रिलेशन हम निकालते हैं फिर बताएंगे ये कम्युनिटी है भाई इतना सिगरेट पिएंगी तो उसको इतना कैंसर का इन्वॉल्वमेंट होगा प्रोडक्शन भी हो सकती है रिस्क जो को रेशो बताते हैं हम उससे आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा हेलो जी यस सर हाँ और यस जो सर
क्रॉस सेक्शनल स्टडी है बॉटनी में। आप जो रूट का, अगर आपने माइक्रोस्कोप पर देखा होगा, क्रॉस सेक्शन रूट का लेते हैं, वो खुर्दबीनी में माइक्रोस्कोप पर लगा के उसका आप स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। ऐसे ही कम्युनिटी में क्रॉस सेक्शन स्टडी या प्रिवेलेंस स्टडी के लिए आप जाएंगे क्वेश्चनर बना के, और वो क्वेश्चनर टेस्ट करेंगे, और वो क्वेश्चनर जाके कम्युनिटी में लेंगे, किसी भी एसोसिएशन का देखेंगे, ब्लड प्रेशर का एसोसिएशन किसके साथ है, तो आप देखेंगे कि पिछले 7 दिन की या प्रीवियस 8 डेज, मतलब मील हैबिट्स किसी की भी आप लेंगे, तो उसमें आपने देखा कि भाई इसमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, तो उसकी एसोसिएशन निकली। तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी से फिर उनको कहेंगे भाई आप नमक थोड़ा कम करें, ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है जो बर्डन स्टडी है। लेकिन केस कंट्रोल जो स्टडी है, केसेस और कंट्रोल मिला के हम उनको देखते हैं रिलेशन क्या है किसी का। इस हवाले से स्मोकिंग का रिलेशन क्या है डिजीज के हवाले से, जब स्ट्रांग रिलेशन होगा तो हम उसको मना करेंगे। दिस इज अ केस। ये स्टडी हम डिजीज Sir, what is the purpose of the odds ratio? What is the purpose purpose of of odds odd ratio? ratio, my sons, purpose of odd ratio, Dr. Shafi and me at here, for example, odd ratio cross drug, I am a smoker, Dr. Shafi is not smoker, for example, तो मुझ में इंसिडेंस कितना है, शफी में इंसिडेंस बिल्कुल नहीं है। दिस इज ऑड रेशियो, एक क्लियर कट स्ट्रेंथ बताती है, पिक्चर बताती है कि इसमें स्ट्रेंथ डिजीज का कितना है, इसमें स्ट्रेंथ डिजीज का कितना है। 8.1 जो ज़्यादा मतलब है, 8.1 जो हमने 2/2 टेबल पर हमने किया कि स्मोकर्स में लंग कैंसर का है, और उसमें कमी है, उसमें कुछ मतलब कमी है, बहुत कम है उसमें। ये ऑड रेशियो है। इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज्ड पर्सन्स, इंसिडेंस रेट अमंग नॉन एक्सपोज्ड पर्सन्स, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ऑड रेशियो है। पहले तो हम रिलेशन, जिसका एक रिलेशन निकालते हैं रिस्क का, ठीक है। इंसिडेंस रेट अमंग एक्सपोज्ड डिवाइडेड बाय इंसिडेंस रेट अमंग नॉन एक्सपोज्ड, फिर ए और डी, ये सी और डी, ये ऑड रेशियो है, ठीक है ना, ये ऑड रेशियो है। तो उसके बाद हम स्ट्रेंथ निकालते हैं 2/2 के टेबल के हवाले से हम कैलकुलेशन करते हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? Yes, sir. Thank you. Is there some you have difference about the some cross sectional study and case control study को आपने समझा, कुछ डिफरेंस अभी मालूम किया आपने? Yes, sir. जी बेटा, you are only very good my son, very good my son. Any other student please? Any other student? No, sir. Thank you. Okay, God bless you my son. Okay beta, okay.